A very good morning to all of you. This is Abhilasha Mahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 3 of your book Politics in India Since Independence, and the name of the chapter is India's Foreign Policy. In our previous class, we discussed about the peace and conflict with China. We have seen how India started its relationship with China peacefully on a very friendly note. Okay, after that we have seen the Tibet issue. Also, we have seen the Panchsheel agreement between China and India, and how this Panchsheel agreement. In this Panchsheel agreement, there are some. These Panchsheel agreement was based on 5 principles between China and India, and the main principles of this agreement is India and China both will not interfere in the internal affairs of each other's territorial region. Okay, so there will be a mutual respect for the sovereignty of each other's country. Okay, so these are some of the principles of the Panchsheel agreement, and after that we have seen how China annexed Tibet, how China annexed Tibetan plateau in the year 1954. Okay, finally after final annexation in 1956 and then 1959. Okay, so now our today's topic is the Chinese invasion 1962. India started its relationship with China on a very friendly note. काफी पीसफुल एनवायरनमेंट था चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है. बट 1962 में क्या हुआ था? देयर इज अ सिनो चाइना वॉर, द चाइनीज इन्वेशन. चाइना स्टार्टेड इन्वेडिंग some of the parts of India. So two developments strained this relationship. जो ये peaceful relationship था उसमें सबसे important जो main जो causes थे वो क्या causes थे? दो डेवलपमेंट्स. क्या डेवलपमेंट्स चाइना ने कर ली थी? चाइना एनेक्स तिब्बत, ये तो फर्स्ट वन. वी विल डिस्कस बोथ elaborately. China annexed Tibet, and the second one is a boundary dispute between India and China. These are the two main these were the two main reasons जो ये peaceful relationship था इंडिया एंड चाइना के बीच में वो काफी strained out हो चुका था. China annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between the two countries. Now class, look at this map. Look at this map. So this is the present map, but ये देखिए इंडिया और चाइना के बीच में जो पहले जो बाउंड्री थी, पहले जो आपका बोल सकते हो जो बाउंड्री टच करती थी वो जस्ट इतना सा एरिया. आप देख लो, जस्ट लेट मी चेंज माय पेंसिल कलर. दिस वन, बस यही पार्ट था जो इंडिया और चाइना का जो था एज अ बाउंड्री टच करता था. बाकी ये वाला एरिया और बाकी ये सारा एरिया जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री नहीं थी, ठीक है. और तिब्बतियन प्लेट्यू बाकी जितना भी ये वाला जो है कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉनसन लाइन मार्क की गई थी, ठीक है. ये वाला है मैकमोहन लाइन यहाँ पे इंडिया और तिब्बत के बीच में कर दी गई थी. तो ये तिब्बतियन प्लेट्यू था, ठीक है. तो इंडिया बहुत फ्री था इस चीज को लेके. इवन जवाहरलाल नेहरू भी बहुत फ्री थे इस चीज को लेके कि चाइना हमको एनेक्स नहीं कर सकता है, चाइना से हमें इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी. बिकॉज अगर हमें एनेक्स करने की कोशिश करेगा तो चाइना और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा बफर है. बफर का मतलब है कि एक ऐसी प्लेस है जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है. एंड दिस प्लेस इज, दिस बफर इज तिब्बत.
ठीक है, बस बहुत ही छोटा सा एरिया था जो चाइना और इंडिया को क्या करता था, चाइना और इंडिया का इंडिया के बाउंड्री में था, टच कर रहा था चाइना और इंडिया को आपस में। सो इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा आर्मी भी वहां पे सेटल नहीं की थी, मिलिट्री भी वहां पे नहीं थी इंडिया और चाइना के बाउंड्री में, पैरामिलिट्री फोर्सेस थे। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, more information came. Initially the government of India did not oppose this openly. जब इंडिया चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया, ठीक है, तो इनिशियली बिकॉज ऑफ द पंचशील अग्रीमेंट ऑल्सो इंडिया ने जो है इसको ओपोज नहीं किया, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती गई वैसे वैसे क्या हुआ, the more information came in about the suppression of Tibetan culture, the Indian government grew uneasy. जैसे जैसे उन्हें पता चला कि तिब्बतियन कल्चर को वो क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, वो चाइनीज कल्चर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, उनको जो ऑटोनॉमी उन्होंने प्रॉमिस की थी इंडिया को कि तिब्बतियन की हम फुली हम ऑटोनॉमियस पार्ट रखेंगे, ऑटोनॉमी देंगे, वो अब अपना प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे क्या है, बहुत ज्यादा टेंशन में आने लग गई थी। जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर थे, कौन थे, दलाई लामा थे। इंडिया ने उनको 1959 में हमने देखा कि इंडिया ने क्या किया था, एज अ रेफ्यूजी, पॉलिटिकल एसिलम इन इंडिया, कि एज अ रेफ्यूजी हमने एंट्री दे दी थी, और धर्मशाला में, वो धर्मशाला दिल्ली के कुछ पार्ट्स में आके ये लोग स्टैब्लिश होने लग गए थे। So China alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within India. अब यहाँ पे चाइना को क्या लग रहा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, व्हाट दे वर डूइंग, दे वर अलाउ इंडिया वाज अलाउइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज। एंटी चाइना एक्टिविटीज क्यों किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंडिया जो है पंचशील अग्रीमेंट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पंचशील अग्रीमेंट both the countries will not interfere on their internal affairs. Okay, but now India is like giving asylum to तिब्बतियन, ठीक है, वहां के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को भी उन्होंने क्या दिया है, एसएलएम दिया है, एक एसएलएम दिया है, उनको घर दिया है, ठीक है, वो अलाउ कर रहे हैं। तो चाइना ने इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि जो इंडिया और चाइना के बीच में अग्रीमेंट था, इंडिया ने क्या कर दिया, उसे वायलेट कर दिया। तो ये एक वेरी फर्स्ट रीजन था चाइनीज इन्वेशन का, ठीक है, 1962 में जो सिनो चाइना वॉर हुआ था, उसका वेरी फर्स्ट रीजन जो है, व्हेन चाइना एनेक्स्ड तिब्बत, चाइना थॉट इंडिया violate the Panchsheel agreement. Okay, now the second one is, a little earlier a boundary dispute had surfaced between India and China. India claimed that the boundary was a matter settled in colonial time, but China said that any colonial decision did not apply. Okay, now again look at the map which is given in your book. Just look at this map. ठीक है, जो भी आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला जो भी एरिया देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट डे मैप है ये, ऑल्दो, बट ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये जो बाउंड्री है कॉलोनियल टाइम में तिब्बत और इंडिया के बीच में हुई थी। ये यहाँ पे जॉनसन लाइन थी, यहाँ पे मैकमोहन लाइन थी, ठीक है, इन्होंने ड्रॉ कर दी थी, एंड तिब्बत और इंडिया के बीच में अच्छे रिलेशन थे, उन्होंने क्या है, इस बाउंड्री को एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट नाउ चाइना क्या कर रहा था, व्हेन चाइना इन्वेडेड तिब्बत, दे सेड कि कॉलोनियल रूल को हम, कॉलोनियल डिसीजन को हम नहीं मानते, ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, दे स्टार्टेड डिमांडिंग दिस एरिया, ठीक है। इवन फिर यहाँ पे कुछ एरिया जो है, ये त्वांग वाला जो एरिया, गैंगटॉक वाला जो एरिया है, सिक्किम में त्वांग एक जगह, वहां का जो एरिया है, और इवन मोस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश, इतना एरिया उन्होंने कहा कि दिस इज द पार्ट ऑफ चाइना नाउ, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग दीज एरियाज,
कि अब चाइना बोलने लग गया था इंडिया को कि ये जो एरियाज हैं वो हमारे हैं, हम कॉलोनियल डिसीजन को हम नहीं मानते हैं, कॉलोनियल ने जो लाइंस ड्रॉ करी है, बाउंड्रीज ड्रॉ की है, हम उसको नहीं मानते हैं, ये डिसीजन जो है अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये सेकेंड रीजन था। द मेन डिस्प्यूट वाज अबाउट द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर। एक लॉन्ग बॉर्डर, एक तो अक्साई चीन वाला एरिया जो लद्दाख रीजन में है, ठीक है, एंड सेकंड जो मोस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, जिसको प्रेजेंटली हम बोलते हैं नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसका नेम हमने आज के प्रेजेंट डे में हम उसे ये वाला टर्म देते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो ये जो एरियाज थे वेस्टर्न रीजन में एंड ईस्टर्न रीजन में, ये दो एरियाज जो थे वो मेन डिस्प्यूटेड रीजन थे, एंड चाइना क्लेम्ड दैट ये जो एरिया है वो क्या है, वो हमारे अंडर आता है। So between 1957 and 1959, the Chinese occupied the Aksai Chin area and built a strategic road there. अब चाइना ने एक तो क्या डिमांड करने लग गए, वो अब सिक्किम वाला जो एरिया था थोड़ा बहुत वो भी उन्होंने वो भी डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने अक्साई चीन का भी एरिया डिमांड करने लग गए थे, वो वेस्ट के साइड से। ईस्टर्न के साइड से जो नेफा था उसको भी उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर दैट रीजन। तो अब चाइना भी बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रैटेजीज अपना रहा था कि हम कुछ बहुत सारी चीजें डिमांड करते हैं, ठीक है, तो कुछ तो हमारे हाथ में आएगा। तो फाइनली जो 1957 से 1959 के बीच में चाइना ने क्या किया, अक्साई चीन का जो एरिया था उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, और वहां पे एक रोड को क्या कर दिया था, उन्होंने बिल्ड करवा दिया था। Despite a very long correspondence and discussion among top leaders, these differences could not be resolved. ठीक है, अब आपको मैंने बताया था रियलिस्टिक व्यूज थे, आइडियलिस्टिक व्यूज थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल he knew it from the very beginning कि चाइना के साथ हमारे हमारे जो रिलेशंस हैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली नोट पे नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए, बट जवाहरलाल नेहरू ने पीसफुल नेगोशिएशंस किए, ठीक है, उन्होंने फ्रेंडली नोट पे सॉफ्ट कॉर्नर रखा चाइना के साथ। तो काफी लीडर्स ने क्या किया था, उस पर डिस्कशंस वगैरह भी चले थे, बट ये जो अक्साई चीन का एरिया का जो इश्यू था वो रिजॉल्व नहीं हो पाया था। इवन इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तो इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे इवन, और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको फेस करना था इंडिया को। So several small border skirmishes between the armies of the two countries took place. तो जो छोटे छोटे बॉर्डर्स थे, जो मैं आपको सिक्किम वाला एरिया का बता रही हूँ वहां पे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में, कुछ जो अक्साई चीन वाला एरिया है वहां पे बहुत से छोटे छोटी जो है वॉर्स दोनों ही कंट्रीज के बीच में चलने लग गई थी। सो नाउ 1962 का आपको पीरियड पता है। 19 अक्टूबर 1962 में क्या हुआ था, अक्टूबर 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ था, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये आपका 12-13 दिन तक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चला था अक्टूबर 1962 में। तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, वर्ल्ड की पूरी जो अटेंशन थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे थी, टू सुपर पावर के बीच में थी, क्योंकि दोनों के बीच में एक क्राइसिस चल रहा था। तो उस टाइम ने चाइना ने क्या किया, चाइना लॉन्च द स्विफ्ट and massive invasion in October 1962 on both the disputed regions, जो अरुणाचल प्रदेश नेपाल वाले एरिया में और जो अक्साई चीन वाला एरिया है वहां पे क्या कर दिया 1962 में चाइना ने एक वहां पे अपनी आर्मी को, उन्होंने ट्रूप्स को वहां पे भेजना स्टार्ट कर दिया था, एंड वो बॉर्डर्स में आ गए और बॉर्डर्स को क्रॉस करने की कोशिश करने लगे। The first attack lasted 1 week and Chinese forces captured some key areas in Arunachal Pradesh. 1 वीक तक रहा जो पहला अटैक था 1962 अक्टूबर 1962 में, और उन्होंने क्या है अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को कैप्चर भी कर लिया था। द सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ, नवंबर में आया, while the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh. In the east, the Chinese managed to advance nearly to the entry point of Assam Plains. अब क्या हुआ अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको पता होगा उस टाइम पे असम, ये जो नागालैंड वगैरह, नागालैंड का एरिया, असम का एरिया,
मेघालय जो है, ये सेपरेट स्टेट्स नहीं बने थे उस टाइम पे। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग में कि असम को, मेघालय को असम से कार्व आउट किया था 1972 में, क्या था, नागालैंड भी नहीं था, नागालैंड को 1963 में में किया गया था, ये अलग सेपरेट नेशन स्टेट बनाया गया। मणिपुर त्रिपुरा को भी 1972 में बनाया। तो ये उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को फुली कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया, तो और उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद देखो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बांग्लादेश एट दैट टाइम, प्रेजेंट डे बांग्लादेश वाज ईस्ट पाकिस्तान। तो इंडिया को यहाँ पे दोनों ही साइड से खतरा था। वो यहाँ पे भी क्या करने लग गए थे, यहाँ से अपनी आर्मी को वो भेजने लग गए थे, ट्रूप्स को भेजने लग गए थे, कुछ पार्ट्स जो है यहाँ पे भी एनेक्स करने की कोशिश कर रहे थे। अब इंडिया के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ से अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए, ईस्ट पाकिस्तान ने बाउंड्रीज एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से चाइना ने एनेक्स करने लग गया और वो आगे बढ़ता है, तो इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न, प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वो क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। एंड एट दैट टाइम आपका फ्रेश न्यूली बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कर रहे थे, इवन कुछ प्रोसेस चल भी रहा था और इंटीग्रेट कुछ नेशंस को, कुछ प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कर भी दिया था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने यहाँ पे। So, the second wave of attack came next week while the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh. In the east, the Chinese managed to advance nearly to the entry point of Assam Plains. फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड अ यूनिलेटरल सीज फायर। ठीक है, अब 1962 में ये अक्टूबर में वॉर हुआ, नवंबर में भी उन्होंने अटैक किया। ठीक है, असम प्लेन्स में वो कैप्चर ही करने वाले थे, एंट्री पॉइंट तक वो पहुंच ही गए थे। बट फाइनली क्या हुआ था कि चाइना ने जो है एक यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया था। सीज फायर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक अग्रीमेंट कर लिया था कि हम जो है वॉर नहीं करेंगे, वी शुड स्टॉप फाइटिंग ईच अदर, एंड इट्स ट्रूप्स विड्रू टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगेन। ठीक है, जहां से इन्वेजन स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके वो क्या है, वहां से चले गए। So the China war dented India's image at home and abroad. बहुत ज्यादा जो चाइना का वॉर था, सीनो चाइना वॉर ने इंडिया की इमेज को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। अब सिटीजन्स जो थे इंडिया के, वो भी जो है प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी जो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी थी, उस पे क्या करने लग गई थी, उनपे अब उनको ट्रस्ट नहीं रहा था। India had to approach the Americans and the British for military assistance. As you all know, like some top level leaders का मानना था कि इंडिया को वेस्टर्न अलायंस के साथ जाना चाहिए, इट विल डेवलप अस। और बट इंडिया ने क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को चूज किया। तो अमेरिकन से, ब्रिटिश से उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस, मिलिट्री हेल्प मांगी। सोवियत यूनियन से भी, सोवियत यूनियन, अमेरिका और ब्रिटिश ने समहाउ दे हेल्प इंडिया, बट सोवियत यूनियन काफी न्यूट्रल रहा था। एज यू ऑल नो, सोवियत जो है कम्युनिस्ट था और चाइना भी कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था। तो बहुत न्यूट्रल था सोवियत यूनियन इस कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान। It induced a sense of national humiliation and at the same time strengthened the spirit of nationalism. तो नेशनली मतलब इंडिया को उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि हम जो है ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। इवन उस टाइम पे लोगों के अंदर जो है एक नेशनलिज्म की फीलिंग भी डेवलप हुई थी। जो टॉप लेवल आर्मी कमांडर्स थे, उन्होंने उस टाइम पे क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। इवन जो आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, वीके मैनन जो थे, वीके मैनन, आपके बुक में उनके बारे में कुछ दे भी रखा है इंफॉर्मेशन, जस्ट लुक एट दिस। वीके कृष्णा मेनन, डिप्लोमेट एंड मिनिस्टर। ठीक है, डिप्लोमेट थे, ठीक है, अपने
डिप्लोमेट मतलब कि यूके में क्या कर रहे थे वो, फॉरेन कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक्टिव इन द लेबर पार्टी इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी में काफी एक्टिव रहे हैं। इंडियन हाई कमिश्नर रहे हैं, ठीक है। फिर आफ्टर दैट लेटर हेड ऑफ इंडियाज डेलीगेशन टू यूएन, ठीक है। इंडियाज डेलीगेशन टू यूनाइटेड नेशंस में क्या किया है उन्होंने, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो इंडिया के बिहाफ में उन्होंने लिए हैं। फिर राज्यसभा के एमपी रहे हैं, फिर लोकसभा के एमपी रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं 1957 से। एंड एज यू ऑल नो नेहरू वाज आल्सो दैट आल्सो डिप्लोमेट, तो ये भी डिप्लोमेट थे। तो काफी क्लोज रिलेशनशिप थे नेहरू जी और वीके मेनन के। बट इंडो चाइना वॉर के बाद इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। So Nehru's own stature suffered as he was severely criticized for his naive assessment of the Chinese intention and the lack of military preparedness. अब नेहरू जी की भी जो ये एक स्टेटस था, ठीक है, नेहरू जी को काफी लोग पसंद किया करते थे, उनका काफी लाइक स्टेटस था, इम्पोर्टेंस था। अब उनका भी जो स्टेटस था, इम्पोर्टेंस था, वो समहाउ सफर करने लग गया था। उनको लोगों ने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज किस लिए किया था? फॉर इज नेव असेसमेंट। नेव असेसमेंट का मतलब कि नॉट उन्होंने मेच्योर डिसीजन नहीं लिया था, नॉट मेच्योर डिसीजन। चाइनीज इंटेंशन और लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, एज यू ऑल नो कि उन्होंने अक्साई चीन जो स्मॉल बॉर्डर टच होता था बिफोर द इन्वेजन ऑफ तिब्बत, उस टाइम पे क्या किया था उन्होंने, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे लगा दी थी, मिलिट्री फोर्सेस नहीं लगाई थी। तो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी नहीं थे। चाइनीज का जो इंटेंशन था इंडिया के कुछ पार्ट्स को इन्वेड करने का, तो उनका जो ये डिसीजन, इमेच्योर डिसीजन था, उसको लेके लोग जो थे उसको काफी क्रिटिसाइज करने लग गए थे। एंड एट दैट टाइम आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिब्बत 1959 1960s के टाइम पे, आफ्टर यू कैन से 1962 के वॉर के बाद में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके लोकसभा में फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन चला था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और इस टाइम पे जो है अब पॉलिटिकली बहुत ज्यादा क्या है चेंजेस आने लग गए थे कंट्री में। द कांग्रेस लॉस्ट सम की बाई इलेक्शन टू लोकसभा, ठीक है, बाई इलेक्शन हुए थे। एज यू ऑल नो, बाई इलेक्शन जब कोई रिजाइन कर देता है या किसी की डेथ हो जाती है तो उस वेकेंट सीट को फुलफिल करने के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसको हम बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो कांग्रेस ने कुछ बाई इलेक्शन सीट्स को भी लॉस कर दिया गया था। अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो था चेंज होने लग गया था कंट्री का। ओके, so now the Sino-Indian conflict affected the oppositions as well. अब Sino-Indian conflict से वर्ल्ड वाइड भी काफी इफेक्ट हुआ था। The growing rift between China and the Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India. अब चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में भी क्या है, कहीं ना कहीं एक रिफ्ट आ रहा था, एक दरार आ रही थी, और इससे जो डिफरेंसेस थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे, वो काफी इस चीज को क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी, ठीक है। द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन द सीपीआई। अब कुछ लोग यूएसएसआर को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे, कुछ लोगों का मानना था कि जो वेस्टर्न अलायंस है, यूएस है, वो काफी अच्छी है, ठीक है, वो कुछ लोग उनको मानते थे। तो जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था, एक स्मॉल सेक्शन जो बन चुका था, अब वो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ था और कांग्रेस के साथ काफी अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा था। और कुछ लोग जो थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे, वो दे समहाउ लाइक सम टाइम क्लोजर टू चाइना एंड वाज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस। अब वो चाइना के साथ में था और वो कांग्रेस के अगेंस्ट में बोलने लग गया था। So the party split in 1964। आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो 1964 में स्प्लिट होके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बन चुकी थी। The leaders of the later faction formed the Communist Party of the India Marxist. In the wake of the China War, many leaders of what became CPIM were arrested for being pro-China। अब बहुत सारे लीडर्स जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जो लीडर्स थे, ठीक है, चाइना वॉर के टाइम पे, आफ्टर चाइना वॉर, उनको अरेस्ट भी किया गया। क्यों? कि वो चाइना के साथ में है, दे आर लाइक
helping China. So the war with China alerted the Indian leadership to the volatile situation in the northeast region. जो सिचुएशन थी उस टाइम पे, एज यू ऑल नो, कि वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो थे, जो प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो उस टाइम पे सेग्रीगेट नहीं हुए थे। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को असम, मेघालय को असम से निकाला, नागालैंड, मणिपुर को भी अलग से स्टेट बनाया। And apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration. As हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में, कि ये वाले एरिया में, मणिपुर का एरिया जो था, ठीक है, वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन में काफी हमें प्रॉब्लम आई थी। नेशनल इंटीग्रेशन, ये चैलेंज भी हम फेस कर रहे थे। द प्रोसेस ऑफ इट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिगेन सून आफ्टर द चाइना वॉर। कि क्यों होने लग गया? क्योंकि इससे क्या, चाइना क्या कर लेगा, अगर अरुणाचल प्रदेश तक आ चुका था, वो उसकी डिमांड करने लग गया था। सिक्किम के भी एरिया को भी वो वहां पे भी स्कर्मिश वॉर्स चल रहे थे। तो इससे इंडिया का जो प्रोसेस था 1962 के वॉर के बाद, इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस था, स्टेटहुड का जो प्रोसेस था, वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, नागालैंड को 1963 में ही क्या है, स्टेट बना दिया गया था। फिर मणिपुर और त्रिपुरा को 1972 में स्टेट बना दिया गया था। दो यूनियन टेरिटरीज वर गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव, कुछ ऑटोनॉमियस पावर्स भी दे दी गई थी उनको लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। बट फिर भी वहां पे क्या किया गया था, इन स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश, उनको स्टेटहुडशिप देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो नाउ सीनो इंडियन रिलेशन सिंस 1962, it took more than a decade for India and China to resume normal relation. It was in 1976 that full diplomatic relations were restored between the two countries. 1962 के वॉर के बाद इंडिया को अप्रोक्सीमेटली 13-14 साल लग गए थे कि फिर से जो है चाइना और इंडिया के साथ रिलेशन, चाइना और इंडिया के रिलेशन जो है मेंटेन करने में। अटल बिहारी वाजपेयी, एज यू ऑल नो, जनता पार्टी थी उस टाइम पे, और इंटरिम गवर्नमेंट भी आई थी, बीच में गवर्नमेंट काफी चेंज हुई थी। तो वहां उस टाइम पे जनता पार्टी की मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनी थी। तो उसके जो टॉप लेवल लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो at that time he was external affair minister, so he visited China for the very first time. After that, after Jawaharlal Nehru, Rajiv Gandhi became the first prime minister to visit China, and since then the emphasis is more on trade relation between the two countries. और उसके बाद से जो हमारे रिलेशन है चाइना के साथ, ट्रेड के लिए, ट्रेड पे काफी एम्फेसाइज किया गया है। And more about India and China relationship we will talk about in chapter new centers of your book, contemporary world politics. Okay, so this is all about today class. Thank you so much for joining the class, and go through this topic, and if you face any problem do let me know. ये जो टॉपिक है आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में हम चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है, फिर भी गो थ्रू दिस टॉपिक, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।